So today we'll just learn some bits about the web development platform. Okay. So first of all, moving ahead, I'll just tell you like what is the basics of the or what we will just learn in this few part. First of all, we just go ahead with I'll just as you have told me, they will just learn a bit of what is HTML and what is the purpose of HTML and how the far and what is the importance of HTML CSS, right? So without wasting time, I'll just tell you some before moving forward. Let's just tell you some of the basics. Like you are already with the HTML, so you might note on this some basics. Like there are three types, or you can say in the web development platforms, there are three sectors. Okay, so first one will be the front end development, and other one will be the back end, and other one will be the database, right? So now it is not considered as a platform, like because back end is usually connected with the database and it does the operations, but actually that is another one category which is called as a database. Okay, because all the data or whatever the data will be done in the database, and if according to that only we have to make our backend, so that we can just get all the data and connect to the front end according to it. Okay, so what basically happens in the front end? In the front end part, you can say that whatever we see, like you can see the designs, or you can see this presentation. This is a kind of front end. Like here, everyone, you can see a designs, and it is basically user friendly, and whatever you need to show your information, might be your website or might be any such information, it can be shows in the front end part. Okay, but what happens the backend? It usually connect with the database and with the front end. It's actually, you can tell that it's a medium. Okay, which actually, for example, you have a login page. Okay, so in that login page, to you will type your email ID and password, whether the password is correct or not, whether the email ID is already exist or not, that all the information are stored in the backend, right? So for that purpose, we are not in the backend, in the database, right? So that is the purpose of the data backend. Like he will connect the front end. Backend will get, you will from front end, you will send the data like this, have user have sent this email ID and this is the password, right? And you will check in the data whether it is right or not, and if it is wrong, then you will send him the invalid credential or some error message. Otherwise you will send him the data or whatever the front end is required, or whichever portal, right? Because after login, if you are a student, you might render to the student dashboard, and if you are from the admin, like then you can enter into the admin dashboard, right? So for that purpose, the database and the backend part is used. And then if you move like the what are the technologies and what are the languages we would be using, obviously HTML, CSS and JavaScript. And why it is because HTML, this, whether you do with the normal HTML, like the normal basic pages, whether we move to React, whether you move to Angular, whether you move to Vue, okay, Vue.js, in every part HTML is must. So before that, we would be using before, some years back, normal HTML was used, because HTML, obviously it is the only language to design a web page, because it is a hypertext markup language, and it is the, you can say, but the problem in the HTML that we can't use only HTML, because HTML is completely a static page, right? So for example, I want to make this part is dynamic, like after 30 seconds it will change, or according to the user needs it will show. So that all things we can't do only with the HTML, because HTML is only a static part, where you can only get the data, like you can make some pages and content and write it, and that will be fixed as it is. Okay, so for that reason, to make it a bit dynamic, to make it a bit animated, to make it a bit more comfortable and so not good looking, basically you can say animation and some operations part, we started using JavaScript. ओके, सो हम कहाँ पर थे? HTML से राइट? HTML बेसिकली क्या होता है ना, वो पूरा का पूरा एक स्टैटिक पार्ट है, राइट? स्टैटिक का मतलब क्या है? आप जो भी टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ओके, सो ये बेसिकली चेंज नहीं होगा, ये इट विल बी कंप्लीटली फिक्स्ड एज इट इज। अगर मुझे कुछ इससे कुछ चेंज करना है या फिर करना है, ये हमें नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता था? ऑपरेशनल लैंग्वेज, लाइक
जो लैंग्वेज जो कि हमें ये पावर दे सकता है कि हम अपने हिसाब से कोड लिख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सके। HTML कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं कर सकता है, हमें कैलकुलेट कर सके, कुछ एक ऑपरेशनल कर सके। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का इनोवेशन बचे। जावास्क्रिप्ट इज, यू माइट बी थिंकिंग लाइक जावास्क्रिप्ट इज सिमिलर टू जावा और समथिंग लाइक दैट, but that is not the true. JavaScript is completely different and Java is completely different. There is no connection or no anything with Java and JavaScript. Okay, and for that reason, to make it operational, to make it a bit जो काम करने वाला हो सके, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का पार्ट हुआ। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द CSS पार्ट। ऑब्वियसली आपने वेबसाइट बना दिया, ऑपरेशंस में भी दे दिया, पर अगर आप उसमें आप अगर कुछ क्या बोल सकते हैं, डिजाइनिंग, कलर्स, या आप बोल सकते इस तरह का कुछ आप नहीं देंगे तो वेबसाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। चाहे वेबसाइट हो, डेस्कटॉप आपका वॉलपेपर भी हो, कुछ भी हो, विदाउट कलर्स एंड विदाउट सम स्टाइल्स, एनिमे not styles, without some colors, gradient color, different designs, okay, without designing आपका वो पार्ट नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए CSS का यूज होता है। CSS इज बेसिकली कैस्केडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो ये बेसिकली आपका पार्ट आता है डेवलपमेंट में कि आपको वो डिजाइन देगा। आप कलर कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ भी पार्ट हो गया, डिजाइन देगा। फाइन। So next, we'll just not move to this part because it is for the React part, and we'll just move like what all things will serve part like HTML, CSS, Bootstrap and JavaScript. Okay, so आपने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, JavaScript क्या होता है। Bootstrap क्या है? Bootstrap एक ऑलरेडी बनाया हुआ पैकेज है जिसे आप आप बस लिंक करके आपको जो भी तरह का चाहिए वो आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, मतलब आपको बहुत सारा काम बनाना पड़ता है। जैसे कि आपने मान लीजिए ऊपर का नैव बार आपने देखा होगा ना, जब होम, अबाउट अस वगैरह वगैरह बटन्स रहता है, वो अगर बनाना है तो आप बूटस्ट्रैप से डायरेक्टली जाकर आप कर सकते हैं। आपको आपने कोई बूटस्ट्रैप यूज किया है? यस सर, किया है, राइट, फाइन। ओके, सो फाइन। सो इसके बाद हम सीधे एक स्टार्ट करते हैं कुछ एक प्रोग्राम से, कि मतलब कैसे होता है HTML का नॉर्मल प्रोग्राम। मैं यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ। ओके, स्टार्टिंग से ही करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मुझे अभी एक करना है, तो मैं एक बार कर लूँगा डेमो। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया डेमो। इसके बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएशन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक JS फाइल, CSS फाइल and after this I'll then go to the Visual Studio Code folder। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडी ही है, आपको पता होगा, इसमें हम बेसिकली कोड करने के लिए यूज करते हैं। आप बहुत सारे अलग आईडीज हैं, जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। So I'll give the name as text file and I will save it at index.html. Okay, right? ये बेसिकली आपका हो गया एक HTML फाइल, जिसका नॉर्मली हम जानते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होता है। जैसे कि मान लीजिए HTML हेड, टाइटल, बॉडी। फाइन, ये हो गया HTML का, आप बोल सकते हो बेसिक पूरा ब्लैंक का। एक HTML पार्ट में क्या होता है, बेसिकली आपका नॉर्मल एक HTML है, और इसका एक स्टार्टिंग का ब्रेसेस होता है और एक एंडिंग का। फॉर एग्जांपल ये है जो है, ये स्टार्ट है, मतलब यहाँ से आपका ये HTML का टैग स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड दिस इज द एंड, बिकॉज यहाँ पर बैकस्लैश है, और इससे बोल सकते हो आप कि इसमें यहाँ पर HTML का बेसिकली हो सकता है कि एंड होता है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए होंगे तो आपको वहां पर हम ब्रेसेस यूज करते थे, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये मान सकते हैं ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग, काइंड ऑफ एग्जांपल। ओके, एंड ये हेड टैग,
तो ये इसके अंदर एक और टैग है हेड टैग। ओके, आई एम सॉरी, हर एक HTML पार्ट को आपको बेसिक सिंटैक्स है कि आप उसे एक रैप कीजिए HTML टैग के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। तो हेड टैग बेसिकली पढ़ सकते हो कि ब्राउजर का जो यू कैन से लाइक ब्राउजर का जो होता है ना, ये वाला जो एक हेड पोर्शन, ये वाला जो हेड पोर्शन मतलब आप बोल सकते हो यहाँ तक के पूरा यहाँ तक या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पे। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर हेड पार्ट पे टैग होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप टाइटल कुछ भी देंगे तो वो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं न्यू टैब लिखा है, वो उस यहाँ पर टाइटल में आप बोल सकते हो कि यहाँ से आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा यहाँ पर डेमो क्लास। फाइन। सो इसके बाद मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं सीधे चलता हूँ ब्राउजर में, डॉक्यूमेंट्स, वेब, डेमो, सो यू कैन सी अभी यहाँ पर आ रहा है हमारा एक डेमो क्लास, राइट, टाइटल है। सो बेसिकली यहाँ पर इसी तरह से वो यूज होता है टाइटल, राइट। तो फिर ये टाइटल में आप जिस तरह से चेंज करेंगे वो यहाँ पर का आप उसी तरह से आएगा। ओके, सो उसके बाद हम पार्ट में आते हैं बॉडी। सो बॉडी बोल सकते हो, आपको बॉडी का तो टर्म से पता चला। बॉडी मतलब यहाँ पर आपको जो भी सारे डिजाइन बनाने हैं वो सारे आएंगे बॉडी के पार्ट में। फाइन। ओके, सो आफ्टर दैट हम चलते हैं, ये हो गया इसका बेसिक मतलब स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं क्या है इसका टैग्स। मतलब नॉर्मल HTML में हम अब कोड करने के लिए कुछ बनाने के लिए कौन कौन से प्री डिफाइंड टैग्स है। I'll not say that you can also create it own tags, बट प्री डिफाइंड क्या क्या टैग्स हैं उसी लेक्चर हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा हम टैग से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर हेडिंग टैग। ओके, सो हेडिंग टैग्स HTML में 6 तरह के होते हैं, अब बोल सकते हो H1 से लेकर H6 तक। फॉर एग्जांपल ये हो गया H1। तो H1 में अगर मैं लिखता हूं कि हेलो क्लास, तो ये है, ये टैग मीन करता है हमारी ये हेडिंग 1 है, एंड हेडिंग 1 विल बी द मोस्ट टॉप एंड हेडिंग। आप इसके हिसाब से आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर चेंज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हेलो क्लास हेडिंग 1 में इस तरह का आता है। तो इसी को अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी की तरह होगा, आप देख सकते हो हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक अगर हम जाते हैं तो उसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज दोनों ही धीरे धीरे के कम होता जाता है, राइट। सो ये हमारा एक टैग होता है HT हेडिंग टैग का। फाइन। सो उसके बाद हम और क्या क्या प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, एक और टैग है इसी तरह से आप बोल सकते हो कि ये हो गया हेडिंग का, और दूसरा होता है हमारे पैराग्राफ का। ओके, जो है हमारे P टैग, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। सो यहाँ पर जैसे कि आप लिख सकते हो हेलो, तो ये हमारा बेसिकली एक पैराग्राफ में फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पर आप जितने सारे मैसेजेस या फिर कंटेंट्स का जो भी होता है वो इस तरह से आप दिखाते हो, तो ये पूरा इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। इसके लिए ये भी आप देख सकते हो इस सब का स्टार्टिंग है और इन सब का एंडिंग है। वैसे ही एक और टैग भी होता है जिसका मान लीजिए हम नेक्स्ट इसी में मुझे और भी 2-3 लिखना है, पर मुझे इसी के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है। तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं,
नेक्स्ट लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? एनीबॉडी? बियर टाइप। या बीआर टैग। तो इसका ये स्टार्टिंग होता है, सॉरी, या आप बेसिकली इस तरह से लिखते हो या फिर नॉर्मल किस तरह से? इसका क्लोजिंग टैग होता है? नो सर, नहीं होता। सॉरी, बियर टाइप का क्लोजिंग नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि सर क्योंकि बियर बस वो ये देने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसके पास उसके बाद नेक्स्ट ये स्टार्ट होगा। ओके, बीआर टैग का भी क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। बीआर टैग का भी, हर एक टैग एचटीएमएल में स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होगा, बीआर टैग का आप क्लोजिंग टैग नहीं देते, तब वो हमारा जो अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो उसे उस जो एरर्स को वार्निंग से इग्नोर कर देते हैं। बट बीआर टैग का भी क्लोजिंग टैग होता है, हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होता है। अगर आपको किसी का क्लोजिंग टैग नहीं देना, अगर सिंगल में लेना है, तो ये नॉर्मल एचटीएमएल में वो कुछ है कि इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप पर अलग लैंग्वेजेस, जैसे कि हम रिएक्ट में जाते हैं या फिर एंगुलर में जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फ्लटर्स वगैरह में भी जो HTML का पार्ट होता है जो PDF कन्वर्जन के लिए, तो वहां पर भी अगर आप सिर्फ BR दोगे तो वो आपका एरर आएगा। कोई भी टैग का, अगर मान लीजिए कोई एक टैग है जिसका आपको क्लोजिंग टैग नहीं देना है, तो आपको वो जो स्लैश है वो आपको इस टाइप के बाद दे सकते हो, इस तरह से। तो ये यहीं पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे क्लोज हो गया, इस तरह से होता है। इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। ओके, फाइन, क्लियर टिल द। फिर हम चलते हैं टेबल पे। टेबल टैग होता है, ये बेसिकली यूज होता है टेबल्स बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर टेबल बनाने का फॉर्मेट किस तरह से होता है कि टेबल का टैग मैंने इंपोर्ट बना दिया, उसके बाद मुझे क्या लिखना है? तो पहले उसका टाइटल देते हैं, फिर डेटा देते हैं उसमें टेबल हाँ, में। तो टाइटल स्टार्ट करने के लिए कैसे होगा? उसका टैग क्या है? टीवी का यूज करते हैं, टेबल टाइटल और फिर टेबल डेटा। फिर से टीडी यूज करते हैं टेबल के डेटा के लिए, और फिर मैं टाइटल के लिए बोल रहा हूँ। टाइटल के लिए सर शायद पहले तो रो बनाना है ना हमें, हाँ। राइट? उसके लिए तो TR यूज कर लेंगे, हम्म, राइट? उसके बाद हमें टाइटल लिखना है, या फिर बोल सकते हो हेडिंग्स लिखना है। जी। उसके लिए क्या टैग यूज होता है? TH, हाँ। टेबल हेडिंग, हाँ। ठीक है। नेम, क्लास, ब्रांच, ओके। तो इसके बाद ये हमारा टेबल TH है, टेबल हेडिंग। उसके बाद टेबल डेटा हमें बना, डेटा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसा कि आपने बोला था, TR, एक और रो बना, और ये हो गया TD। हो रहा है? और ये अभी टेबल की तरह दिख नहीं रहा है ना?
हाँ अभी ये मैंने बना दिया, राइट। पर ये आपको मतलब टेबल की तरह दिख रहा है। ये तरह से है, पर ये मिक्स एक लग रहा है कि पूरा सेंटेंस मिक्सअप हो जा रहा है, राइट। तो मुझे अगर इसी में मुझे ना टेबल मतलब तो सबको पता होता है ना कि बॉर्डर बॉर्डर जैसे हमारे एक्सेल सीट में होता है, बॉर्डर बॉर्डर करके रहता है, राइट। तो उस फॉर्मेट को हमें अगर लाइन तभी से तुम्हें दिखाई देगा। और ये ऐसे भी ना बहुत साइड में दिख रहा है। तो एक और टैग मैं उसे पहले एक सेंटर करता हूँ, इसके लिए मैं यूज करूंगा सेंटर टैग। राइट। तो इसके बाद बॉर्डर इक्वल टू 2। अब ये ठीक तरह से टेबल जैसा दिख रहा है, यस सर। राइट। तो मान लीजिए अभी मुझे एक और पैराग्राफ टाइप का बनाना है, ठीक है। हेलो। जी जी। नहीं मैं टाइप कर रहा हूँ, दिस इज अ डेम, राइट। ये अभी जो मेरा प्रिंट होगा किस तरह से प्रिंट होगा, इतना स्पेस के साथ प्रिंट होगा या बिना स्पेस के प्रिंट होगा या एक स्पेस के प्रिंट होगा? उतना स्पेस के साथ प्रिंट होगा। साथ प्रिंट होगा, ओके लेट्स चेक। इतना स्पेस के साथ प्रिंट नहीं हुआ, वो एक ही स्पेस के बाद साथ प्रिंट हुआ, राइट। यहाँ पर मैं अगर है ना बहुत सारा और भी ज्यादा देखता हूँ, फिर भी वो उतना से ही प्रिंट होगा, राइट। तो इसको हम हैंडल कैसे करें, एनी आइडिया? नो सर। ओके, इसे करने पे अभी ना हमारे पास दो वेज है। पहला वेज, हम स्पेस का जो कोड है वो डालें एंड एन बी एस पी कॉलम, ये वाले को हम डालते जाए जितना हमें स्पेस चाहिए, फिर वो इस तरह से स्पेस प्रिंट होगा। या फिर हमारे पास एक और टैग है विच इज कॉल्ड एज प्री टैग, ओके। तो ये हम पैराग्राफ के बदले मैं इसके अंदर ना लिखता, हम सीधा यहीं पर भी लिख सकते हैं प्री प्री। तो इसके बाद फाइन, यहाँ पर हम जितना आप स्पेस देंगे, मान लीजिए मैं और अभी स्पेस दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ये और भी नीचे जा रहा है। जितना हम स्पेस देंगे जो भी लिखेंगे वो पूरा उसी तरह से प्रिंट होगा, फाइन। और अभी मान लीजिए मुझे एक एक ये यहाँ का एक एक पार्टीशन जैसे वो करना है, एक एक पार्ट पार्ट बना के मुझे एक टाइप का बनाना है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? ये तो हमारा सेंटर का गया, ये वाला का गया। तो अब एक और टैग होता है डिव टैग, डिव स्टैंड फॉर डिवीजन। तो हम पेज में पूरा का पूरा है ना डिवाइड करते करते चलते हैं। ये मैंने सेंटर टैग के ऊपर में डाला है, ये वाला नीचे डाला है। अभी ये वाला पार्ट तो आपको कुछ, ये तो मैंने स्पेस हटा दिया। अभी आपको ये वाला दिखेगा तो कुछ नहीं, बिकॉज ये डिव वाला जो है। पर अभी डिव में भी एक और पार्ट होता है, डिव में भी अगर आप चाहें ना टेबल की तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए यूज होता है स्पैम। ओके,
तो ये वाला भी आया नहीं इसलिए क्योंकि वो दोनों ही सेंटर में है और दोनों ही पूरा ले रहा है, राइट। ओके, सो ये एक ही डिवीजन में ले रहा है बट नीचे नीचे ले रहा है, फाइन। ओके, सो एक ही डिवीजन में ले रहा है बट पैम देने पर भी वो पूरा ले रहा है, फाइन, नो इश्यू। सो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं एक एक पार्ट बनाने के लिए इतना अभी दे सकते हैं, इतना ही बेसिक टैग्स है जिसे यूज करके नॉर्मल पूरा पेजेस हो सकता है, डिजाइन वगैरह हो सकता है, राइट। तो आप इसके साथ एक और पार्ट रहता है जो CSS। ओके, तो यहाँ पर हमने CSS वगैरह तो कुछ बनाया नहीं है, राइट। सो CSS का हम अगर एक एग्जांपल लेंगे तो इससे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CSS भी आपको पता होगा 3 टाइप्स का हो सकता है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, राइट। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इनलाइन है क्योंकि मैं जहां पर मुझे चाहिए मैं वहीं पे CSS यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कलर मुझे ये वाला कलर बनाना है, रेड, फाइन। और मान लीजिए ये वाला P टैग में भी मुझे करना है एक और स्टाइल, क्या बोल सकते हैं, फॉन्ट साइज, मुझे इसका फॉन्ट साइज और बड़ा करना है, राइट। ओके, हाँ, एक और चीज शायद मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, जैसे हम कहते हैं एक और टैग मार्क क्यू। ओके, सो ये वाला काम क्यों नहीं कर रहा? ओके, तो ये पूरा को ले जा रहा है, पूरा टेबल को क्यों ले रहा है? ओके, यहाँ पर ऊपर जाने में पूरा ले जा रहा है, ओके, फाइन। सो ये एक और है मार्क्यू जो आपने बेसिकली अपने कॉलेज वेबसाइट में मेन में देखा होगा, ये बस चलता रहता है, राइट। ओके, तो ये इतना ही बेसिक हमारा टैग रहता है HTML में, और ये हो गया एक टाइप का CSS।